Today in this session we shall see the curved surface area, lateral surface area and volume of the right circular cylinder. Right circular cylinder. See here, this is cylinder. If you cut this, you will get this rectangular sheet, which is the curved surface area of the cylinder. And these two circular bases, one rectangular sheet and two circular equal bases forms a right circular cylinder, right, like this, whose height is h. Suppose, see here, this is a right circular cylinder, two circular ends. If r is the radius of the circular end, then pi r square will be the area of the upper circular face and pi r square will be the area of the lower circular base. In this rectangular sheet, if r is the radius of the circular base, then 2 pi r will be the circumference. It means length of this rectangle will be 2 pi r and height with this circumference, that is 2 pi r. It becomes the length of the rectangle here, 2 pi r. Okay. Now the height is h. Therefore, area of this rectangular sheet is 2 pi r h. 2 pi r h. Okay. And the area of each circular end is pi r square and pi r square. Okay. So here there are three parts. Volume of the cylinder now. See here with height of volume of a cylinder, यहाँ पे हाइट 0 है, तो सिंपली पाई आर स्क्वायर मीन्स आपको यहाँ पे सर्कुलर बेस मिल रहा है, वॉल्यूम ने प्लेन फिगर है. अभी हाइट बढ़ा दिया 1 किया तो उसका वॉल्यूम जो हो जाएगा 1 इंटू पाई आर स्क्वायर मीन्स पाई आर स्क्वायर. 2 किया तो पाई आर स्क्वायर 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर. ओके. 3 किया तो और 3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू 3 मीन्स दैट विल बी इन यूनिट सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, आर का भी सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम जो होगा सेंटीमीटर क्यूब में होगा. If it is h, then it will be pi r square h. The volume of the cylinder is pi r square h. Base area multiplied by height of that solid gives us the volume of the right circular cylinder. So V equals to pi r square h. This you have to remember. Okay. Now see some examples. See here the first example in exercise 13.2. The curved surface area of a right circular cylinder of height 14 centimeter is 88. Curved surface area जो है that is 88. Curved surface area of a right circular cylinder means 2 pi r h. 2 pi r h यहाँ पर 18 दिया है, जिसका हाइट जो है राइट सर्कुलर सिलेंडर का वो 14 है सेंटीमीटर. फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर. डायमीटर आपको निकालना है तो पहले हम रेडियस निकालेंगे. रेडियस का ट्वाइस किया तो आपको डायमीटर मिल जाएगा. सो लेट द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर बी r सेंटीमीटर. सो हियर हाइट जो है सिलेंडर की 14 सेंटीमीटर, हाइट जो है यहाँ पर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दिस इज गिवन. Curved surface area that is this 88. So 88 centimeter square that is given. So curved surface area means 2 pi RH की वैल्यू आपको दिया है. This 2 pi RH equal to 88. That is 2 into 2 pi RH means 2 into 22 by 7 pi into R into H. H is 14 here. This is 14. So this is equals to 88. So R equals to 88 upon this 14 into 2 multiplied by 7 by 22. So R gives us 1 unit. Therefore 2R means twice. R का रेडियस का डबल कीजिए तो डायमीटर हो जाएगा. Therefore the diameter of the circular base of the cylinder will be 2 centimeter. इस तरह से आप उसका डायमीटर निकाल सकते हैं. यहाँ पर उसने सर्कुलर सिलेंडर का सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया दिया था. कर्व्ड सरफेस एरिया मीन्स 2 पाई आर एच दिया था यहाँ, और इसमें ये एच भी दिया था. तो यहाँ से हमने h की वैल्यू पुट करके ये r निकाल लिया. r का ट्वाइस किया तो डायमीटर हो गया. इस तरह से हम राइट सर्कुलर सिलेंडर का डायमीटर निकाल लिया. सेकंड क्वेश्चन देखिए. इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक. आपको क्या करना है कि क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक तैयार करना है जिसका हाइट जो है 1 मीटर का होना चाहिए
एंड बेस डायमीटर जो है 140 सेंटीमीटर का होना चाहिए, दैट इज 1.4 मीटर ऐसा होना चाहिए फ्रॉम ए मेटल शीट से आपको ये टैंक तैयार करना है, राइट सर्कुलर सिलेंडर वाली टैंक। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ शीट आर रिक्वायर्ड टू द सेम। तो अगर आपको ये टैंक तैयार करना है क्लोज्ड, दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, क्लोज्ड मीन्स हैविंग टू सर्कुलर एंड्स, उसको ढक्कन भी ऊपर से चाहिए। तो इसका मतलब आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर निकालना पड़ेगा, वो जितना होगा उतनी आपको शीट लगेगी। हाइट कितनी है 1 मीटर, ठीक है ना, और डायमीटर है 140 सेंटीमीटर। सो हियर हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1 मीटर, दैट इज 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में निकाल लेते हम, कन्वर्ट करते सभी। 2r मीन्स डायमीटर 140 सेंटीमीटर दिया है, ट्वाइस r, तो r हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। तो अभी रेडियस पता हो गया, हाइट पता हो गया। So total surface area of the right circular cylinder is equal to 2 pi r into bracket this h plus r. That is 2 pi r, 2 pi r square, 2 pi r square, 2 circular bases plus 2 pi rh curved surface area. So take 2 pi r as common. 2 pi r को common ले लो, 2 pi r को common ले लो, तो this will be r plus h total surface area. So this is 2 pi r into bracket h plus r and r plus h. So 2 into pi, 22 by 7. R is 70, this is r 70, and in bracket h plus r, h is 100, 1 meter, 100 centimeter plus 70 centimeter r again. So it gives us 7.48 मीटर स्क्वायर। ये आपका सेंटीमीटर में हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर है, that is सेंटीमीटर into सेंटीमीटर। So this centimeter convert into 1 meter, तो ये 1/100 meter into this will be 1/100 meter. So that will be then meter square. So you have to divide this by 100 into 100. So it comes 7.48 meter square. Therefore, a sheet required. And 7.48 meter square sheet is required to form, to make this cylindrical tank. Okay. Then next, a metal pipe is a 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये पाइप है, ये दिख रहा है आपको, ये पाइप है, लंबाई है 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये h इक्वल टू 77 सेंटीमीटर। द इनर डायमीटर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। अंदर का जो डायमीटर है, जैसे ऐसा सर्कुलर बेस है एक इन अंदर का, तो दिस इज सपोज, सॉरी दिस इज सपोज स्मॉल आर एंड यहाँ से सेंटर से लेकर आउटर का जो है वो कैपिटल आर है सपोज रेडियस। सो इन द गिवन सिलेंडर, देखो क्वेश्चन देखिए, द इनर डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर, द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। अंदर का जो है, जो पाइप के अंदर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, बाहर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है पाइप का, और फिर टोटल सरफेस एरिया, पूरा सरफेस एरिया भी निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हाइट दिया है उसने मेटल पाइप 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है। सो h इक्वल टू 77 सेंटीमीटर, ट्वाइस आर है, अंदर का जो डायमीटर है, अंदर का डायमीटर ये वाला, दैट इज 4 सेंटीमीटर, डायमीटर 2r, सो r विल बी इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, स्मॉल r। इनर रेडियस ऑफ द सर्कुलर बेस 2 सेंटीमीटर। बाहर का जो है कंप्लीट, अगर बाहर का डायमीटर जो है, बाहर का डायमीटर दैट इज कैपिटल ये डी अगर है आपका, तो ट्वाइस आर, डायमीटर जो ट्वाइस आर, ये ट्वाइस आर पूरा यहाँ का बाहर का, तो 4.4 सेंटीमीटर है, तो आर इक्वल्स टू आउटर रेडियस 2.2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप इनर रेडियस और आउटर रेडियस निकाल लीजिए। अभी निकालते हैं हम इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच है। तो यहाँ पर हमको अंदर से, हॉलो वाला जो पाइप है अंदर से, उसका कर्व्ड सरफेस निकलना है, तो उसके लिए हमको अंदर का इनर रेडियस लेना पड़ेगा, जो कि 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया is 2 pi r h. In this, small r is the inner radius of the pipe. So 2 into pi, 22 by 7 into r, that is 2, and h is 77, height is 77, so it comes 968 centimeter square.
अभी आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो कैपिटल आर बाहर का रेडियस ले लीजिए, बाहर का रेडियस कितना है 2.2 है, so 2 into pi 2.2 r into 77 h, so it comes 1064.8 centimeter square. This is the outer curved surface area and this is inner curved surface area, ये वाला 968 सेंटीमीटर स्क्वायर इनर कर्व्ड सरफेस एरिया और 1064.8 centimeter square is the outer curved surface area of this pipe. Now next you have to find the total surface area of the cylinder. टोटल सरफेस एरिया जब निकालेंगे हम तो अंदर का इनर कर्व सरफेस एरिया, बाहर का कर्व सरफेस एरिया और उसके अलावा जो होगा ये अगर ऊपर का सर्कुलर बेस है ऐसा तो ये वाला पार्ट का निकालना पड़ेगा, ये वाला पार्ट का ऊपर का, वैसे ही सेम नीचे का भी इसका एरिया क्योंकि वो हॉलो है तो यहाँ पे ये जो है स्मॉल आर है, सॉरी स्मॉल आर और ये जो है कैपिटल आर है, कैपिटल आर, तो ये जो एरिया होगा आपका पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्कल में से अंदर का सर्कल माइनस किया तो ये शेडेड वाला आपको शेडेड वाला एरिया मिलेगा. ओके, सो देयरफॉर total surface area will be 2 pi r outer curved surface area, small 2 pi rh, r is small inner curved surface area plus pi, ये देखिए pi r square minus pi r square means ये हो जाएगा का pi into bracket r square minus r square, तो ये तो एक ही होगा इसका, ऐसे नीचे से भी है तो ये ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस पाई इन ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये दोनों ये वाले जो पार्ट से ऊपर का नीचेगा उसका एरिया हो जाएगा. अभी यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, 2 पाई आर एच कैपिटल आर जब है तो ये हमारा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हमने निकाल लिया है. 2 पाई आर एच स्मॉल आर एच ये 968 निकाल लिया, पहले से निकाल लिया, ये पहले से निकल रहा. अब ये देखिए ये वाला 2 पाई 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर का स्क्वायर 2.2 का स्क्वायर 4.84 माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, सो 1064.8 प्लस 968 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू ये होता है आपका 0.84 ये ज्यादा आ गया 2 टाइम्स हाँ, सो इट कम्स देखिए 1064.8 plus 968 plus this 2 into 22/7 into 0.84, it comes 5.628. So total surface area of that pipe, total surface area will be 2038.08 meters square. So this will be the correct answer. Okay. The next question. The diameter of a roller is 84 सेंटीमीटर, उसका जो डायमीटर जो दिया है ऐसा डायमीटर ऐसा रोलर है सपोज आपके पास में इस तरह से ये रोलर है और ये अलोंग दिस रोल हो रहा है, इसका डायमीटर पता है आपको, इसका डायमीटर जो है 84 है, 84 सेंटीमीटर एंड इसकी हाइट जो है ये हाइट हो गई 120 सेंटीमीटर. इस तरह से आपका ये रोलर है ये वाला, ठीक है ना. सो द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर. इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ये इस रोड पर 500 बार ऐसा रोटेट होता है अलोंग दिस रोड, तो 500 रिवॉल्यूशंस में वो कितना प्लेग्राउंड लेवल करेगा. तो हमको निकालना है पहले एक राउंड में कितना प्लेग्राउंड वो लेवल करेगा. तो एक रोटेशन में से 2 पाई आर एच की वैल्यू, ये जो कर्व सरफेस एरिया पूरा राउंड हो जाएगा इस पे ऐसा घूमेगा वो, तो 2 पाई आर एच में एक रिवॉल्यूशन में वो अपना ग्राउंड लेवल करेगा, एक रिवॉल्यूशन में कितना करेगा, तो 2 पाई आर एच निकालना पड़ेगा. यहाँ पे देखिए ट्वाइस आर जो है 84 दिया है डायमीटर, तो आर हो जाएगा आपका 42 सेंटीमीटर, हाइट जो लेंथ में से हाइट दिस इज 120 सेंटीमीटर. So area of the playground leveled in taking one complete revolution. एक complete revolution में अगर उसने एक complete revolution ले लिया तो 2 पाई आर एच इतना एरिया वो जमीन पर का कवर करेगा या लेवल करेगा. सो 2 पाई आर एच की वैल्यू निकालो 2 इंटू पाई 22/7
into R, that is 42, H is 120. So it comes 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया वो एक रिवॉल्यूशन में लेवलिंग करेगा ग्राउंड पर का। तो ऐसे वो 500 रिवॉल्यूशन ले रहा है, उसके रोटेशन जो है 500 टाइम्स है। इसलिए एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड विच विल बी लेवल्ड इन 500 रिवॉल्यूशन विल बी, ये एक रिवॉल्यूशन का एरिया जमीन पर का इंटू ये 500। सो ये आता है फिर इतना मीटर स्क्वायर। मीन्स ये 4 जीरो उड़ा दो, ये वाला ये वाला ये वाला ये ठीक है। तो ये आएगा 1584 मीटर स्क्वायर। सो 1584 मीटर स्क्वायर एरिया वो लेवल करेगा 500 रिवॉल्यूशन में। ये सेंटीमीटर स्क्वायर था, इसको मीटर में कन्वर्ट किया यहाँ पर, क्योंकि अभी पहले बताया मैंने कि सेंटीमीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर स्क्वायर इस सेंटीमीटर का मीटर बना तो 1/100, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। इस सेंटीमीटर के मीटर करो 1/100, तो इसलिए 100 से डिवाइड किया है, वो तो मीटर स्क्वायर बन जाएगा। ये मीटर बनेगा, ये भी मीटर बनेगा, तो ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। नेक्स्ट, ए सिलेंड्रिकल पिलर, एक सिलेंड्रिकल पिलर है इस 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर। एक पिलर है आपके पास में सिलेंड्रिकल, देखिए 50 सेंटीमीटर डायमीटर, डायमीटर जो इसका 50 सेंटीमीटर, ठीक है डायमीटर, एंड 3.5 मीटर हाइट, इसका हाइट जो है 3.5 मीटर हाइट है, और डायमीटर जो है सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर, तो 25 सेंटीमीटर उसका रेडियस हो जाएगा। रेडियस 25 सेंटीमीटर, इसको मीटर में करो, 100 से डिवाइड करो तो 0.25 मीटर। हाइट जो है 3.5 मीटर, दिस इज आल्सो इन मीटर, अभी दोनों मीटर में हो गए। सो अभी क्या निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर। वो पिलर को अगर लेटरल सरफेस एरिया जो होता है उसका कर्व सरफेस एरिया, उसको पेंटिंग करना है। पेंटिंग का खर्चा है 12.5 पर मीटर स्क्वायर, ये उसका रेट, 1 मीटर स्क्वायर के लिए 12.5 रुपये खर्चा आता है। तो कितना खर्चा आ जाएगा, तो लेटरल सरफेस एरिया कितना है पहले वो हमको निकालना पड़ेगा। तो लेटरल सरफेस एरिया जो होता है सिलेंडर का, राइट सर्कुलर सिलेंडर का, वो 2πRh होता है, वो निकालते पहले। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर 2πRh, ये हो जाएगा 2 into pi 22/7 into 0.25, दिस इज योर R 0.25, H इज 3.5, तो इसको सिंप्लीफाई करने से हमको मिलता है 5.5 मीटर स्क्वायर। तो अभी 1 मीटर स्क्वायर के लिए 12.5 पर रुपीज इतना है, 12.5 रुपए 1 मीटर स्क्वायर के लिए, तो 5.5 मीटर स्क्वायर के लिए कितना खर्चा। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ रुपीज 12.50 per meter square is equal to 5.5 into 12.50, that is 68.75 रुपीज है, 68.75 इतना खर्चा आएगा टोटल उस पिलर को कर्व सरफेस एरिया को पेंटिंग करने के लिए। आई बात समझ में। तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। Just a minute. Okay, it is over now. Okay, we shall stop here.